ذہنی صحت یہ وہ موضوع ہے جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے. کل بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی اور آج بھی اس پر اس لیے بات کرنا بہت عام ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں اضافہ ہو رہا ہے. اور جب ذہنی صحت کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، تو ڈپریشن سب سے عام مرض ہمیں لگتا ہے. ایک سروے کے مطابق ملک میں تقریباً 44% افراد ایسے ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور بدقسمتی سے غربت، بے روزگاری اور متعدد سماجی مسائل کی وجہ سے اس مرض میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اب بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی ڈپریشن دیکھا جا رہا ہے. لیکن جب ہم بات بچوں کی کرتے ہیں، یہ سوال بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ کیا غربت، بے روزگاری یا پرسنل ریلیشنز، اس کا امپیکٹ بچوں پر ہوتا ہے ان کو کہ ڈپریشن ہو جائے؟ اور اگر ہم دنیا بھر کے سٹیٹس آپ سے شیئر کریں تو ہر 8 میں سے 1 شخص ایسا ہے دنیا میں جس کو مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہوتا ہے. تو آج اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ بھی ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور آپ بھی اپنا مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں. اسپیشلی بچوں کے حوالے سے ہم زیادہ فوکس کرنا چاہیں گے کہ آپ ضرور بتائیں کہ آپ کے بچے میں کوئی ایسی چینجز آ رہی ہیں یا اس کو کلینکلی ڈائگنوز ہوئی ہے ایک چیز، وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. کیا چینجز اس کے بیہیویئر میں آ رہی ہے اور کیا آپ کو کرنا چاہیے؟ تو آپ ہمیں کال کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائزہ یزدانی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، بڑوں کے حوالے سے ظاہر ہم بات کرتے ہیں، کچھ سمٹمز بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ وجوہات بھی سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو بچوں کے حوالے سے کس طرح سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے یا اس کو مینٹل ہیلتھ ایشو ہے کوئی؟ دیکھیں، بچوں کو ہم 2 ایج گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک ہم کر دیں 7-8 سال تک کے بچوں کو، اور ایک تھوڑے سے اپر ایج گروپ. یہ بھی دونوں بچوں کی کیٹیگری ہے. 10 ایئرز آنورڈس یہ ایڈولسنس میں چلے جاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں نا، وہ تینوں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو 3, 4, 5 سال کا جو بچہ ہے نا، اس کا ذہن، اس کی سوچ اور اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ وہ انیشل سٹیجز میں ہوتی ہے. اوکے. اور اس کی سمجھ بھی اس کے مطابق ہوتی ہے. تو یہ سیگمنٹیشن کرنا بہت ضروری ہے اور ان کو اس حساب سے سمجھنا. یعنی کہ ہم ڈیولپمنٹل مائل سٹونز کے حساب سے چھوٹے بچوں کو لے کے چلیں گے کہ 3 سال کے بچوں کو ایسا ہونا چاہیے یا ایسا کرنا چاہیے، اور وہ ایسے سوچتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں. اب کوئی بھی بچہ آئے گا نا، ہم اس کے مطابق ایک وہ ہمارے پاس بینچ مارک ہوگا، پھر ہم اس بچے کو دیکھیں گے اس میں کیا چینجز آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہم ساری ایجز میں جاتے ہیں. بچوں کو جو مین چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے، ہم نے ان کا بیہیویئر دیکھتے ہیں، کیونکہ ان میں ابھی وربل کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ بتا سکیں. کئی دفعہ بچے کہتے ہیں نا، میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے. وہ سنتے ہیں نا بڑوں سے سر میں درد ہو رہی ہے تو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے. ٹھیک. تو وہ بچوں سے وربلائزڈ جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ناٹ ریلائبل نہیں ہوتی. تو بچوں سے انڈائریکٹلی ہم نے چیزیں لینی ہوتی ہیں. ان کو آبزرو کرتے ہیں تھرو پلے اینڈ گیمز. ہم ان کا نا جو ہم ہر جو ریفر کرتے ہیں بیہیویئر تھراپسٹ پہ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انڈائریکٹلی ان کے ساتھ کھیلا جائے، انڈائریکٹلی کام کیا جائے. اب بیہیویئر جو ہے نا، بیہیویئر از اے ویری ٹپیکل انڈیکیشن آف دا چائلڈز مینٹل اسٹیٹس. ٹھیک ہے. بچے اب ہمارے پاس جیسے جو بہت سارے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، آئی ایم ویری ہیپی. میں نے اسکولز میں بہت اچھا چینج دیکھا ہے. وہ انڈر 6 ایئرس کے ریفرل بہت انکریز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس لیے انکریز ہو گئے ہیں کیونکہ ایک تو اسکرین ٹائم، کووڈ، اور اس کے بعد جو اوور آل ہلکا سا ڈپریشن سب میں آ گیا ہے. ہر ایک میں مل جل کے بیٹھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے. وہ ڈانٹ ڈپٹ کا رجحان بڑھ گیا ہے. پیرنٹ چائلڈ انٹریکشن، کوالٹی آف لائف بہت متاثر ہوگی. تو بچے تو جو پہلی چیز ہے کہ وہ کیا، پہلے اکیلا بچہ کھیلتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، پھر وہ ٹرن ٹیکنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتا ہے، پھر گروپ میں آ جاتا ہے. پلے گروپ میں جب تک آتا ہے، نرسری میں آتا ہے، گروپ میں بیٹھ کے کھیل رہا ہے کہ نہیں کھیل رہا ہے. اسی طرح ہم مائل سٹونز دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ بچوں میں جیسے جو ایکسپیکٹڈ چیزیں، اب ایک بچہ ہے جو اپنی باری کا نہیں انتظار کر رہا ہے، دھکے دے رہا ہے، غصے ہو رہا ہے، پھر شکایتیں آتی ہیں نا، یہ بچہ اس نے کئی دفعہ کاٹ بھی لیتے ہیں. چونٹیاں تو کاٹنا ہی کاٹنا ہے، سلائڈ پہ چڑھنا ہے، دھکا دے دیا. ٹھیک ہے. تو چوٹ لگ جاتی ہے بچوں کو. اب دیز آر انڈیکیشنز آف ایموشنز ان دا ہوم. یعنی کہ گھر کا جو ماحول چل رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، ماں باپ میں ہم آہنگی نہیں ہے، جوائنٹ فیملی ہے، اکیلے ہیں، جو بھی ہے، بچہ اس کو اپنے بیہیویئر کے تھرو بچہ ابزارب کر رہا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، سہیل فرام کراچی. سہیل، گڈ مارننگ. کیا پوچھنا ہے، کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں سوتا ہوں تو مجھے کچھ ڈپریشن سا ہو جاتا ہے. مطلب اٹھتے وقت میموری بھی تھوڑی سی مطلب ہو جاتی ہے، لاس ہو جاتی ہے.
कि मतलब मैं कहाँ पे हूँ, तो बाद में पता चलता मैं तो बेड पे हूँ। तो कितने अरसे से सोहेल? एज पूछ लें। जी जी जी, और आपकी एज क्या है सोहेल? मेरी 55। और कितने अरसे से आपके साथ ये हो रहा है? ये मेरे से तकरीबन इसी साल से हो रहा है। अच्छा, 2022 आपने कभी से हो रहा है। कोई कंसल्ट किया किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को? नहीं, मैंने अभी तक नहीं किया। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इफ यू क्या कह रहे, नींद सही नहीं आ रही? जब उठते हैं उस वक्त थोड़ी मेमोरी लॉस लगती है इनको, जैसे मालूम नहीं कि कहाँ है, फिर याद आता है कि अच्छा बेड पर हैं। उठते हैं तो डिप्रेशन महसूस होता है उनको। अच्छा देखिए, एज 57 बताई इन्होंने। 55। अच्छा, एक चीज़ जो हम एम्फसाइज करते हैं कि पहले मेडिकल चीज़ होती है, तो पहले इनको अपना मेडिकल क्लियर होना चाहिए। देखिए 40 के बाद आपके चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोई ना कोई चीज़ आपकी इनहेरिटेड आ जाती है, ठीक है। तो पहले मेडिकली आपको होना चाहिए कि आप दवाइयाँ ठीक ले रहे हैं, आप अपने टेस्ट करा रहे हैं, नहीं करा रहे। दूसरा है कि थोड़ा सा जैसे हम सब के साथ होते हैं, जैसे गहरी नींद से अचानक उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम ओरिएंटेड नहीं होते। दैट्स परफेक्टली नॉर्मल, दैट्स नॉर्मल। थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा ना, जब आंख खुलती है तो थोड़ा सा आप याद करते हैं। अच्छा, अमूमन अब आम लोगों के साथ भी वैसे ऐसा हो रहा होता है कि आधी रात को भी अगर आंख खुल रही होती है तो आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने में टाइम लग रहा होता है, स्पेशली अगर आप उस टाइम सोए जिसमें आप नॉर्मली नहीं सोते। हाँ, तब उठ के ऐसे लगता है, थोड़ा सा डिसओरिएंटेशन होती है। और देखिए अभी हम देख रहे हैं कि जो रात को उठना है ना, ये बहुत कॉमन हो रहा है। अब हम इसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि किस वजह से उठ रहे हैं, स्पेशली आफ्टर सर्टेन एज कोई ना कोई इंडिकेशन आ रही होती है किसी ना किसी मेडिकल चीज़ की, ठीक है। फिर हम ये भी देखते हैं कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है। तो जो नींद का पैटर्न होता है कि नींद आना मुश्किल है, नींद से उठना और वापस सो सकना, और नींद के टाइमिंग से इनके मॉर्निंग टाइमिंग पे जल्दी उठना, पहले उठ जाना। ये तीन हमारे पास ना एरियाज होते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, तो इसको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। नींद नहीं आ रही तो क्या इशू है? इसमें होता है कि मैंने कहा ना, ये 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है। तो एक अंडरलाइंग होता है कि आपकी एंजाइटी है या डिप्रेशन है। ठीक है, ये तो हो गया कि आपको फिर नींद नहीं आ रही। तो 3 स्टेजेस होते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट बड़ा आपने अपने रेस किया है कि आजकल बड़ा कॉमन हो रहा है कि रात को एकदम आंख खुल जाती है फिर नींद नहीं आती। बाकी बहुत लोगों के साथ हो रहा है, बहुत सारों के साथ हो रहा है। और वो ये होता है ना कि अगेन वी कम बैक टू दैट थिंग कि आप दिन में वो जो हम कहते हैं ना जी, आप वॉक कर रहे हैं, आप सारा, ये आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं। आप करते क्या हैं दिन में अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए? अच्छा, स्ट्रेस की वजह से नींद टूट जाती है। एक तो हम एंजाइटी कह रहे हैं, हम डिप्रेशन कह रहे हैं, हम फिर एक और डिसऑर्डर होता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसमें फ्लैशबैक्स आते हैं, कोई आपका वाकया हुआ होता है ना, डेथ हुई होती है, कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, तो वो PTSD, उसकी वजह से भी आप अचानक रात को उठते हैं और हार्ट बीट तेज़ होती है और फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, ड्रीम्स आ रही होती हैं। अब हम वो स्पेसिफिक डायग्नोसिस में जा रहे हैं। मैं फिर कहूँगी कि दिन में आपने क्या किया। अच्छा, एक चीज़ होती है स्लीप हाइजीन। अगर आप अपने दिन में इस तरह प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना ठीक करते हैं, अच्छा 7 बजे तक खाना, मगरिब के साथ खाना खा लेना चाहिए। बिल्कुल से हेल्दी रूटीन यही है, हेल्दी रूटीन, ताकि वो हजम हो जाए। फिर आप इशा पे अपना जो भूख लग जाती है रात को, वही तो प्रॉब्लम है। जल्दी सोना है। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी जरा बात कर रहे थे। राना साहब ही शेखुपुरा से। जी राना साहब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे? मैं नेस्ले में जॉब करता हूँ, 40 साल मेरी एज है। पहले ये ना कंडीशन नहीं थी ऐसी। अब ना कोई बच्चे शोर करते हैं, कोई बेगम बात करती है, मुझे बात बात पे गुस्सा आता है। मैं दौड़ के जाता हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, BP चेक कराता हूँ, BP बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन ना बात बात पे गुस्सा आता है। और स्टोर गोली भी लेता हूँ 5 जैसी। राणा साहब, ज्यादा मसला बच्चों का या बेगम का? हाँ जी, ज्यादा मसला बच्चों की वजह से हो रहा है या बेगम ऐसी कोई बात कर रही है जिसकी वजह से मसला हो रहा है? सर बेगम नाल तो कोई मसला नहीं, वैसे अच्छा। बात बात पे ना ऐसे ही गुस्सा आता है। नहीं, ऐसी क्या बात की जाती है आपके घर में, क्या आपको गुस्सा? थोड़ा एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो। सर तो आमतौर पे पहले भी ऐसी बातें घर में होती रहती है। अब कोई घर में बच्चा शोर करे। ठीक है, मतलब अगर वो कह रहे हैं कि वैसे भी अगर शोर करे या कोई भी बात होती है तो एग्रेशन इश्यूज हैं। मैं समझा वो कहेंगे कि भाभी कहती हैं नया सूट दिलाओ, इसलिए गुस्सा आता वो है। उन्होंने कहा नहीं है ना, वो खामोश हो गए, उन्होंने घर खामोश हो वापस गए। जाना है। हाँ, जी, नहीं, उन्होंने तारीफ भी कर दी, नहीं बेगम से मसला बेगम से नहीं मसला है। नहीं है। देखिए, एक तो एक और चीज़ हमको ये भी देखनी है कि काम की तरफ से परेशानी है, फाइनेंशियल परेशानी है, कोई ना कोई, क्योंकि इनको प्रोवाइड करना है घर के लिए। इनको ये भी देखना है
कि क्या कोई ये उस तरह की फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस से तो नहीं गुजर रहे। अच्छा, बज़ाहिर लगा तो नहीं, वैसे तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन क्या ये होता है कि ज़ाहिर है जब आप फॉर एग्जांपल शादी के बाद बच्चे और उसके बाद आपकी थोड़ी सी नींद पैटर्न डिस्टर्ब तो होता है, बच्चों का ज़ाहिर है जागने उठने का पैटर्न डिफरेंट है, आप अगर किसी ख़ास वक्त में आराम करते हैं उस वक्त अगर बच्चे उठे हैं तो बच्चे ज़रा शोर थोड़ा बहुत तो करते हैं, क्या ये वजह हो सकती है? ये भी हो सकती है। देखिए हमारे यहाँ ना कि अब्बू आ गए तो खामोशी इख्तियार करो, ठीक है। हुन ख़त्म हो गया है वो काम। अच्छा खत्म हो गया, ठीक है, अब इसका रिवाज नहीं रहा। बट जनरली होता ये कि भाई आप जब फादर आते हैं तो जी खामोशी हो या बच्चे साइड पे हो जाएं या ख़ास माहौल अडॉप्ट करें, तो उसमें वो जो डिस्टर्बेंस हो रही है अब इनको ये देखना है कि वो बाकी जगहों पे भी हो रही है कि नहीं, वर्क प्लेस पे भी हो रही है कि नहीं। अच्छा घर आ रहे हैं तो इनको मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि थोड़ी देर के लिए ये अपने आप को कर लें अकेला, ओके, थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स। मैंने कल ट्रांजिशन की बात की, बिल्कुल, मी ओनली टाइम, मी ओनली, थोड़ा सा वो शिफ्ट करना, 15 मिनट ले लें, 20 मिनट ले लें। मैं कहती हूँ आएँ, वजू करें, नमाज पढ़ें, अकेला बैठे, थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, उस स्पेस से बाहर निकलें और फोन से भी दूर रहें। हाँ। और मैं कहती हूँ कोई मीनिंगलेस सी इंटरटेनमेंट अपनी 15 मिनट की रख लें, कोई कॉमेडी देख लें, कुछ देख लें, कोई हंस खेल लें, फिर जरा बात करें बीवी बच्चों से, बीवी बच्चों को कोई कसूर नहीं होता, इसी एनवायरनमेंट में आए और फिर लेट एवरीबॉडी बी नेचुरल। और फिर देखें फैमिली के साथ रिलैक्स करना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। कोई शक नहीं। एक और कॉलर है आमिर फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम आमिर, क्या कहना चाहेंगे? क्या है भाई, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? भाई ये है कि जब मैं ऑफिस से जाता हूँ ना, मतलब ड्यूटी पे, तो काफी जहन जो है ना, मतलब वो होता है, जहन पे बोझ होता है, बच्चों के साथ गुस्सा और ये चीज। अच्छा, डॉक्टर साहब ने एक मशवरा तो दिया है कि जब आप ऑफिस से घर जाएं तो कोशिश करें कि इससे पहले कि भी इंटरेक्शन हो 5, 10, 15 मिनट बिल्कुल अकेले अपने आप को वक्त दें, ट्रांजिशन लें। तो क्या आप ट्रांजिशन लेते हैं? घर पहुंचते ही 4-5 फरमाइशें आपके सामने होती हैं? लाइन ड्रॉप हो गई है। बिल्कुल जी, मैं सुना इनका भी यही था। वो यही है जी, ऑफिस से घर पहुंचते हैं, कितना गुस्सा आता है कि बस घर पहुंचता हूँ कोई ना कोई काम उलझा रहता हूँ। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है, अब आजकल जो वर्क प्लेस है ना, वर्क प्लेस में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप कॉलीग्स के साथ बहुत बात करते हैं, 4-5, देखें तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, बहुत शुक्रिया, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब साथ मौजूद थे।